So in the previous labs, we have covered first 25 questions. We have already completed first 25 programs. Now I will start with the question number 26, matrix multiplication. And let's discuss it, how it works and how do we need to do the coding for it. So I'm opening the online compiler. I'm going to share the screen right now. Just a second. Okay. So now we want to do the coding for matrix multiplication. To save time, I have already made kind of all the codes. Maximum मैंने बना लिए हैं अपने end पे. So I will open that and I will directly bring the code in front of you so that we can directly discuss that how it works. So we need to do matrix multiplication. Matrix multiplication में क्या होता है? Anyone? What should be the logic? जल्दी बताओ. Your participation is necessary. मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैं अकेला बोलता जा रहा हूँ. It will be appreciated अगर आप भी participate करो. क्या होता है matrix multiplication का rule? So I have got one response in the chat box. Corresponding elements of matrices will be multiplied and such products will be added row wise or column wise. Okay. And the first condition is that all the number of columns in the first matrix should be equal to the number of rows in the second matrix. This is the main condition. And this is the code in front of you now. So we have made this code. इसमें करना क्या है? First, we need to declare all the variables. ठीक है? And the 4 variables will be R1, C1, R2, C2. Getting all the inputs R1, C1 and R2, C2, we will put a condition that the number of columns in the first matrix should be equal to the number of rows in the second. So if this condition works, then only matrix multiplication will be done. But if this condition fails, then we will say that dimensions are mismatching, multiplication is not possible. So let's go into the details of how the matrix multiplication will be done. So once this matches, we will print that matrix multiplication can be done. And let us define 3 matrices, R1, C1, here R2 as R2, C2, and multiplication. This will be the final result, R1 into C2. So this is just the declaration of the 3 arrays. Now we will input all the first 2 matrix values. So first matrix have R1 into C1 values, तो हम वहाँ पे ये प्रिंट कर देंगे that enter this number of values in the first matrix R1 into C1. तो अगर 2 into 3 कुछ हुआ तो हम लिखेंगे enter 6 values. तो हम scanf के through we will get all the values as input. Similarly, for the matrix number 2 we will get all the values. Now we have to do the matrix multiplication, and matrix multiplication can be done. उसमें करना क्या होता है, हमें फर्स्ट का रो वाइज जाना है और कॉरेस्पॉन्डिंगली कॉलम वाइज जाना है फॉर द सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है. तो in that what I am trying to do here is if my matrix is initially R1 into C2, तो जो भी उसका करंट वैल्यू होगा तो हम उसको इनिशियली 0 कर देंगे because I want to add values into it after multiplication of the corresponding values. तो जो भी मेरा I and J का होगा, let's say R1 into C2 जो मैंने फिल करना है. So multiplication ij equal to 0, initially it will be 0, and then I have to also move within the column 1. ठीक है. तो 0 to column 1 तक जाएंगे and ij will be equal to I into k, ik into kj. मतलब ये वाली चीज सबको समझ आनी जरूरी है, then only matrix multiplication is over. Otherwise अगर इतना हिस्सा क्लियर नहीं है then you will not be able to understand that how it works. So I will try to explain it more clearly here. Just a second. For example, मेरे पास R1 into C2 का मैंने final matrix भरना है. So 2, 3 will be 2 rows and 3 columns. This multiplied by 3, 2, it will be this. तो आपको इस वाले एलिमेंट को इस वाले 1 को ये वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 2 को इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 3 को इस वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. और कॉरेस्पॉन्डिंगली इन सबको फिर ऐड भी करना है. तो 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3, एंड दिस विल बी योर ये वाला फर्स्ट वैल्यू. ठीक है. तो दिस अगर ये वाली वैल्यू है मेरी लेट्स से 10, तो 10 विल बी इक्वल टू 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3. इसी चीज को करने के लिए हमने ये वाली चीज करी है. ठीक है. तो इस लोकेशन पे हम पहुंचे हैं I0
एंड J0, ठीक है। तो हमने इनिशियली 0 0 को 0 कर दिया, इनिशियली इसको 0 कर दिया। अब उसमें हमने प्लस करना है, तो एवरी टाइम द लेटेस्ट वैल्यू विल बी प्लस, एंड उसमें इक्वल टू करके हम वैल्यू डाल देंगे। सो k इक्वल टू 0, k लेस देन C1। तो C1 क्या था? C1 वाज माय नंबर ऑफ कॉलम 1। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 क्या था? 3, ठीक है। तो हमने 3 बार जाना है, और तीनों बार हमने क्या करना है? आई के का मतलब क्या है? 0,0, 0,1, 0,2, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 0,1 इज ये वाला 1, 0,1 मतलब 0,0 इज 1, 0,1 इज दिस, 0,2 इज दिस। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों को असेस कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय के जे। तो के है मेरा 3, तो इनिशियली अगर 0 होगा तो इट विल बी 0, जे मेरा 0 है, तो इट इज 0,0, 1,0 एंड 2,0। तो ये वाला जो एरिया है वो इधर से आ रहा है, और ये वाला जो एरिया है वो यहाँ से आ रहा है। तो ऑल ऑफ दिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड कैलकुलेशन विल बी सॉल्व टू पुट द वैल्यू फॉर दिस। तो ऐसे करके आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। बेसिकली जो हम मैथ्स में करते हैं वही चीज़ इसमें कर रहे हैं, और बाकी न्यू लाइन तो करना ही पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू चेंज द रो एवरी टाइम। So let me run this code and let's verify that if it works fine. So if 2,3 मैंने करना है, I want to verify मुझे input कैसे देना है, it should be with a comma, ठीक है। So 2,3 and second matrix is 3,2. So the final output should be 2,2, लेकिन मुझे उससे पहले 6 वैल्यूज डालने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में। Let it be 1 2 3 1 2 3, and for 6 values for the second matrix let it be 3 2 1 and 3 2 1। अरे 32 होगा, चलो कोई ना। तो जो भी आपका कैलकुलेशन होगा, द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी दिस, 869 869, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख लेना विद द dimensions that we gave 2,3 and 3,2। we gave the 6 values also 1 2 3 1 2 3 and this 3 2 1 32 1 1। तो इनको सॉल्व करने पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बी द आंसर, एंड इट वर्क्स फॉर एनी काइंड ऑफ डायमेंशन, लेट्स से 1,4 and 4,5। तो आउटपुट शुड बी 1,5, ठीक है। तो एंटर 4 वैल्यूज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स 1 1 1 1, and second matrix enter 20, okay. So 2 2 2 every time. So the final answer is coming out to be 8888। so जो भी आपका सॉल्व करने पे आएगा, you can verify it should be 8888 if I give all these values in this dimension 1,4 and 4,5, ठीक है जी। So this is how matrix multiplication is done। I have already saved this code, so this will be shared with you today after the class। now if you have any doubt in this code you can ask it right now, otherwise I will move to the next code। हाँ जी, any doubt in this code मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो अभी की है? अगर हो No, गया तो sir. ओके, वी विल मूव टू द लीनियर सर्च नाउ एंड देन वी विल मूव टू द बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च बाइनरी सर्च डिस्कस करते हैं, एंड आई विल शेयर द कोड वन बाय वन। लीनियर सर्च क्या होता है एनीवन? व्हाट डू वी डू इन लीनियर सर्च? व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट? जल्दी बताओ। So in linear search, the basic idea is that we have to find a number within the array, ठीक है। लीनियर सर्च में क्या करना है? वी हैव टू फाइंड ए नंबर विद इन द एरे, इफ इट एग्जिस्ट मुझे उसका इंडेक्स भेजना है प्रिंट होने के लिए, ठीक है। दैट इज द बेसिक एजेंडा फॉर लीनियर सर्च। एंड लेट द एरे बी साइज ऑफ 100। तो मैंने एक साइज रख लिया पहले से 100, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे पूरा का पूरा कोड उसके हिसाब से रन हो जाएगा, ठीक है। बस इसको 100 को 10 कर देना, तो मैक्सिमम हमारे जितने वैल्यू होंगे उतने हो जाएंगे। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 100 का ले लिया कि चलो मैक्सिमम 100 है अपने पास, बाकी यूजर से इनपुट करवा लेते हैं वो कितने इनपुट करवाना चाहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द यूजर मैंने उससे n पूछ लिया कि भाई मेरे को ये बता दे तू कितने वैल्यू इनपुट करवाना चाहता है। लेट्स से n इज इक्वल टू 5। वी विल गेट द वैल्यूज, 5 वैल्यूज इन द एरे, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट से इतना काम हो जाएगा, दैट वी input the 5 values into the array from the user। जब input हो गया, we will also print that this is my original array, this is how it looks like initially। क्योंकि अब उसके बाद अगर मेरा
ओरिजिनल एरे प्रिंट हो गया और हमने एंड में वेरीफाई भी करना है कि मेरी, लेट्स से आई वांटेड टू सर्च आइटम नंबर 50, तो मुझे ये सर्च करना था कि 50 पूरे एरे में कहाँ पे है। तो एक बार अगर ओरिजिनल एरे प्रिंटेड होगा तो मैं उसको मैच कर पाऊंगा कि हाँ मेरा आंसर ठीक है गलत है, जो भी होगा देख लेंगे। सो नाउ दिस इज द फॉर लूप दैट आई वांट टू रन, दिस विल गेट द जॉब डन। एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई एम मूविंग फ्रॉम 0 टू लेस देन एन। लेट्स से 5 था तो 0 टू 4 तक जाएगा और हर बार वो क्या करेगा, मैच करेगा कि अगर मेरा करंट वैल्यू इज इक्वल टू द आइटम वट एवर द नंबर इज। तो मैंने आइटम के बेसिस पे यहाँ पे ऊपर 50 लिख दिया था। सो 50 विल बी फाउंड, अगर मैच हो जाता है वी विल सेव दैट वैल्यू इन एलओसी लोकेशन में। हम सेव कर लेंगे कि मेरा इंडेक्स एलओसी इक्वल टू आई हो गया है, तो आई सेव हो गया लोकेशन में। एंड वी विल ब्रेक द फॉर लूप, अगर मिल ही गया तो फिर बाहर आ जाओ, ठीक है। दैट वाज द मेन एजेंडा फॉर लीनियर सर्च। मिल गया तो बाहर आके लोकेशन प्रिंट करवानी है। इफ माई लोकेशन इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब अगर इनिशियली देखो मैंने यहाँ पे लोकेशन इक्वल टू -1 किया था, बिकॉज जो मेरा एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है। -1 का मतलब है कि वो एरे में था ही नहीं, मिला नहीं। तो अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब मिल गया कहीं पे, फिर तो वो प्रिंट करवा देगा कि दिस नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर दिस। तो हम आइटम और लोकेशन को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली आइटम आ जाएगी और यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी। अगर नंबर ना मिला होगा तो वो दे देगा कि भाई दिस आइटम इज नॉट फाउंड इन द एरे, ठीक है। सो लेट्स रन दिस कोड नाउ। और मुझे 50 डालना था तो मैं उसमें पहले बोलता हूँ कि मुझे 5 आइटम इनपुट करवाने हैं। एंड आई विल गिव 5 वैल्यूज 1 2 50 4 7 ऐसे करके दे दिया। अब मुझे पता है कि जो मेरा इंडेक्स है 50 मेरा इंडेक्स नंबर 2 पे आया है ना, 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो आंसर 2 आना चाहिए। तो 50 इज फाउंड एट इंडेक्स 2 ऑफ द एरे, ठीक है जी। ओरिजिनल एरे भी प्रिंट हो गया एंड इंडेक्स भी प्रिंट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर सर्च। एनी डाउट इन दिस कोड? हाँ जी, एनी डाउट इन दिस कोड क्विकली? No, sir. Okay, so let's move to the binary search. We will quickly move to binary search now. So binary search में क्या होता है, any idea? How does binary search works? So do we start from the middle? We kind of find the middle and we always compare it with the middle, but ऐसा नहीं है कि वो middle को ही check करेगा, मतलब हर बार मिडल हमें निकालना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट मिडल नहीं उसको मिलेगा, अगर जो भी हमारा एरे में इनपुट जा रहा है वी हैव टू फाइंड द मिडल फर्स्ट। So can you all see the code? I have already pasted it. Let's discuss the concept behind it first. I will open my notebook. Just a second. So for example, I want to do binary search and I have array of size 10, ठीक है। साइज हम रख लेते हैं कि भाई मेरा साइज है 10 का। तो whatever the values will be in the array, it has to follow one basic property that all the values in the array will be in the sorted manner, ठीक है जी। So if I give any value randomly, वो इनपुट करवाएंगे तो उसको सॉर्ट होना जरूरी है, तभी हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट वी हैव टू पुट द सॉर्टेड वैल्यूज ओनली, वर्क्स ऑन सॉर्टेड वैल्यूज ओनली। तो अगर कोई भी वैल्यू डालूंगा मैं, जैसे 2 10 20 21 30 32 70 80 90 95 ऐसा कुछ करके होगा। एंड आई वांट टू फाइंड अ नंबर, लेट्स से मुझे 90 ढूंढना है, ठीक है। मुझे 90 फाइंड करना था। तो अब इसमें 90 ढूंढने के लिए अगर मैं इसमें लीनियर सर्च यूज करता, अगर लीनियर सर्च यूज करता तो कितनी बार हमें कंपैरिजन करना पड़ता? इफ एरे इक्वल टू आइटम वाला, कितनी बार हम ये वाला करते कंपैरिजन, काउंट बताओ बेस्ड ऑन लीनियर सर्च। इट विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइम्स कंपैरिजन करना पड़ता है, यस और नो? पहले 0 के साथ करते, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, हम फिर 8 पे आते और फिर बोलते कि हाँ मुझे मिल गया 90, यस और नो?
अरे बोलो यार। Yes, च- sir. हम्म सो अब बाइनरी सर्च का क्या फायदा है वो देख लेते हैं। बाइनरी सर्च का कंसेप्ट सेज दैट आई विल फाइंड द मिडल एलिमेंट फर्स्ट। अगर मुझे मिड निकालना है, सो द इनिशियल वैल्यू इज 0, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 0 है, और फाइनल इंडेक्स मेरा 9 है, मिन प्लस मैक्स डिवाइड बाय 2। तो ये 4 आएगा, 4.5 आएगा, बट हम उसको 4 मान के चलेंगे। सो लेट्स से दैट इनिशियली माई मिड वैल्यू इज दिस 4 वाला, तो 30 मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड वी विल चेक कि मेरा जो मिड वाली वैल्यू है क्या वो इक्वल टू 90 है। अगर नहीं है, फिर हम दोबारा से मिड निकालेंगे बाय डूइंग सम चेंजेस। तो अगर ये मेरा मिन था और ये मेरा मैक्स था, ठीक है, लोकेशंस, तो अगर मेरा नंबर मिड से बड़ा है, नाउ इफ माय आइटम इज ग्रेटर देन मिड वाली वैल्यू, ठीक है, तो क्या करना है, देन वी विल मूव आर मिन इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। इसको मैं ARR कर देता हूँ। अगर मेरा एरे ऑफ मिड लोकेशन से आइटम बड़ा है, वेयर माई आइटम इज 90, ठीक है, मैं आइटम 90 सर्च करना चाह रहा था, एंड इन दिस केस 90 इज ग्रेटर देन 30, इनिशियल वाला है ना। तो इस केस में हम मिन को शिफ्ट कर देंगे 0 की बजाय यहाँ पे। सो दिस टाइम माई मिड इज अपडेटेड टू, मिड नहीं, मिन इज अपडेटेड टू 5। नाउ अगेन वी विल फाइंड द मिड पॉइंट, ठीक है। मिड निकालेंगे 5 प्लस 9/2, क्या आया, 7, यस और नो। तो वी विल अगेन सी इफ माई आइटम इज ग्रेटर देन ARR मिड। इस केस में ये ट्रू है, ठीक है। 7 लोकेशन पे 80 है, और ऑब्वियसली 90 इज ग्रेटर देन 80, तो ये ट्रू है। अगेन वी विल मूव आर मिनिमम इक्वल टू मिड प्लस 1, एंड आर मिन इज अपडेटेड टू 8 इंस्टेड ऑफ 5। पहले 0 था, सेकेंड टाइम 5 हुआ, थर्ड टाइम सीधा 80 हो गया। 80 होगा मिन प्लस 1 करके, 80 होगा, ठीक है। And now this time I will again calculate the mid value. It will be 8 plus 9/2, which will be equal to 8. And this time my item is equal to ARR mid. ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा और वो प्रिंट कर देगा मिड वैल्यू को, कि भाई मुझे मिड पे वो वैल्यू मिल गई है 8 पे। तो इस केस में हमने कितने कंपैरिजन करे, ठीक है। ये भी देखो, अगर मुझे ऊपर 9 टाइम्स कंपेयर करना पड़ा था, इस केस में मुझे फर्स्ट टाइम मेरा मिड था 30 वाला, सेकंड टाइम मेरा मिड था 80 वाला, थर्ड टाइम 90 वाला। तो सिर्फ 3 कंपैरिजन में मेरा काम हो गया इंस्टेड ऑफ 9 कंपैरिजन, यस और नो। Yes, sir. नाउ वी विल सपोज कि मुझे 2 ढूंढना था, सपोज 2 ढूंढना होता, तो अब उस केस में इनिशियली मेरा 30 होता, 30 पे बात ना बनती, फिर मैं अपने मैक्स को शिफ्ट करता, पिछली बार मिन शिफ्ट किया था। नाउ बिकॉज दिस टाइम माई आइटम अगर 2 होती, इट इज लेस देन द मिड वैल्यू ARR मिड, तो जो भी मेरे एरे के मिड पॉइंट पे पड़ी है वो उससे छोटी है, तो फिर हम मैक्स को शिफ्ट कर देंगे यहाँ से मिड -1। तो 0 + 3/2 करते तो 1 आता, 1.5 समथिंग। तो 10 के साथ कंपेयर करते तो भी बात ना बनती, फिर से हम उसको कम करते। नाउ दिस टाइम मैक्स वुड हैव बीन 0, क्योंकि 1 से 1 कम करना पड़ेगा। तो इसमें भी 3 बार में हम 2 पे पहुंच जाते, min plus max by 2 करके, yes or no। now let's do the coding for this, let's move to the code। so initially let's say that our array is of size 5, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं रखा। just a second, I've got the question। sir if we use loop for searching, अगर लूप आप यूज कर लोगे देन इट विल बी लीनियर सर्च ओनली। आप नॉर्मली चलाओ फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन टू दी फाइनल लोकेशन, और अगर वो बिल्कुल एंड पे हुआ तो आपको मैक्सिमम 9 कंपैरिजन करने पड़ रहे थे, या 10 कंपैरिजन करने पड़ रहे थे, अगर मेरा एरे 10 साइज का है। लेट्स से माय एरे इज ऑफ साइज 10, तो क्या आप इतने कंपैरिजन करना पसंद करोगे? मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आर कंपाइलर टू गेट द जॉब डन ऑन ए क्विक बेसिस। थोड़ा तेज करवाना है तो फिर हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अगर नंबर बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है, तो लीनियर वाली अप्रोच कभी कभी काम नहीं करती, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम लीनियर अप्रोच नहीं काम करती बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम. So there we will take help of binary search. For example, मैंने 5 का साइज रखा and we got the array input of 5 values. तो first लाइन नंबर 8 तक तो समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ array input करवा रहे हैं, 5 input करवा लिए. And then we also got the input of the item के कौन सी item search करनी है. ठीक है. Now we will play with this low and high. Now this is min and max kind of. ठीक है, और फिर mid निकाल रहे हैं initially और फिर हम loop लगा रहे हैं while loop का. इसमें भी लूप लग रहा है, बट वी आर वर्किंग स्मार्ट हेयर बाय taking into consideration that we will only compare it with the mid value rather than we are comparing it with every value of every location. So initially 0 and size minus 1 is the low and high. Mid value will be low plus high by 2 जो हम कर रहे थे पहले. While my low is less than equal to high, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप मिड से कंपेयर करवाओ. अगर मेरा मिड आइटम से छोटा है, ठीक है, अगर आइटम मेरी बड़ी है मिड मेरा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लो को शिफ्ट कर देंगे मिड प्लस 1, जो कि ऑलरेडी मैंने पीछे बताया था. एंड इफ माई मिड इज ग्रेटर देन आइटम, सपोज 30 वॉज ग्रेटर देन 2, तो उस केस में हमने क्या किया था, हाई को शिफ्ट किया था मिड माइनस 1. ठीक है, तो वो हाई वाला जो हमारा मैक्स वैल्यू था वो एक पीछे आ गया था मिड के. एंड देन अगेन थर्ड कंडीशन इज दैट अगर मेरा इक्वल टू इक्वल आइटम आता है, वी विल से दैट आइटम इज एट लोकेशन मिड. ठीक है, एट इंडेक्स मिड ऑफ द एरे. और अगर वो मिल जाता है तो वहीं पे हम बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे रेदर देन कंटिन्यूइंग विद द व्हाइल लूप. और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अगर हमारा ये वाली चीज इक्वल टू नहीं होती, वी विल नॉट मूव आउट ऑफ द व्हाइल लूप. एग्जिट तो नहीं हुआ, ठीक है, तो वो तब तक वेट करेगा जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते. और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम बाहर आके वी विल से दैट आइटम डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वी डिड नॉट फाइंड इट. अगर मिली होती तो हम यहीं पे प्रिंट करवा के प्रोग्राम वहीं पे खत्म कर देते, प्रिंट एफ ये वाली लाइन तक पहुंचते ही ना, क्योंकि एग्जिट 0 लग गया. वेर एक्चुअली नॉट अपडेटिंग आर मिड वैल्यू. यहाँ पे एक चीज मेरे को मिस लग रही है. वी आर नॉट अपडेटिंग आर मिड वैल्यू आफ्टर द चेंजेस इन दिस थिंग. ठीक है, मेरे को मिल गया एरर. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू पुट ए इफ हेयर, और हमें मिड को अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे. My mid will be equal to low plus high by 2, because if my low has been updated, then obviously my mid will also get updated. Okay, just a second. If my high is updated, my mid will also get updated. Else we will say that we have found it and we will print it. अब कोई इशू नहीं आएगा, अब तो ये भी चलेगा अगर मैं ये ना भी लगाऊं. So if I say flag not required और मैं यहाँ पे भी exit 0 कर देता हूँ, it will work fine now because I was not updating my mid inside it, इसलिए इशू आ रहा था. It should be fine now. 12, 23, 34, 45, 56. Item to be searched 34 and item is at index 2 of the array. It is working fine now. वही issue था. So let's try it again. 1, 34, 56, 78, 89. I want to find, let's say 78. So it is at the index 3, 0, 1, 2, 3. Okay, yeah. This was the issue. So it has been solved. Any doubt in this now? This was the main issue that I had not put the updated mid value. अगर हमें पता चल रहा था कि मेरी कोई वैल्यू कम ज़्यादा है and if my low or high value was being updated, I had to update my mid value also. मिड कैलकुलेशन सिर्फ एक ही बार ऊपर हुआ था इसलिए इशू आ रहा था, वो बार बार सेम लोकेशन पे वही चेक करी जा रहा था और उसी में लूप में फंस रहा था दैट हर बार मेरा मिड वैल्यू 2 ही है. हाँ जी, क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, आई विल ऑल्सो वेरीफाई कि अगर मेरा उसमें नहीं है वैल्यू देन वो कैसे कह रहा है कि अगर लेट्स से मुझे 6 ढूंढना था 1 2 3 4 5 में नहीं है, इट इज सेइंग दैट आइटम डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिड नॉट फाइंड इट एंड out of coming out of the while loop it said that item does not exist. Okay, I'm saving this code and then we will move to the next code. Just a second. So the next question is that we have to do the
greatest of three numbers using ternary operator. And this is a question that is part of your e-box also, if you have tried. How many of you know that this is a e-box question? I've done it, sir. Okay. So it is actually a 4-line code only. I will bring that code and we will discuss it. Just a second. It saves time if we have it already with us. So let me discuss first that how does this ternary operator works. Maybe few of you does not know it. So if I say, let's say that if I want to check if my number is divisible by 2 or not, ठीक है, even or odd check करना है, even or odd, then I will do this thing. If my n mod 2 equal to 0, it is even, else it is odd. यही होता है, ठीक है, वो printf वगैरह लगा लेना अपने आप. Now if I want to do this thing exactly but in a single line, I can do it like this. n mod 2 equal to 0. if लिखने की बजाय स्टार्टिंग में हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, this is equivalent to if only, and if this is true we will say it is even number, else it is odd number. So this is equivalent to else and this is equivalent to if. And now we have this if else which was in 4 lines earlier in a single line. ठीक है जी, 4 lines of code, 1 line of code. Clear everyone? If you have a doubt you can ask. Similarly, if I want to do greatest of three numbers now, let's say we have numbers a, b and c. अगर मुझे चेक करना है if के थ्रू, तो मैं क्या करूंगा, if a greater than b, इनसाइड दोबारा से एक if आएगा, nested if आएगा. If a is greater than c also, then we will say a is the greatest, else c is the greatest. And if my condition is false the first time, we will say, okay, if it is not true that a is greater than b, it means that b is greater than a. तो हम यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे कि if my b is greater than c also, तो b greatest है, else c greatest है. ठीक है जी, यही होगा. ये 9-10 लाइन लग जाएंगे हमें सिर्फ इतनी सी बात बताने में कि भाई तीनों में से नंबर कौन सा सबसे बड़ा है. यस और नो? Yes. Now if I want to do the same thing using the ternary operator, I can maybe do it like this. a greater than b अगर है, चेक करो a greater than c है, अगर ये भी है, print that a is greatest, else c is greatest. ये तो हो गया अगर a greater than b है. ठीक है, ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है. ठीक है, और अगर ये चीज फॉल्स होती फर्स्ट वाली, ठीक है, अगर तो ये ट्रू है फिर तो पहले वाला आएगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर ये आगे जाएगा. तो ये वाला जो एल्स लगाया हमने, ये वाला कॉलन लगा के, ये इसका एल्स है. ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो क्या b ग्रेटर देन c है. अगर है देन वी विल से दैट b इज ग्रेटेस्ट, एल्स c इज ग्रेटेस्ट. ठीक है जी. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड टर्नरी ऑपरेटर बेस्ड greatest of three numbers का कोड. ठीक है, if you have a doubt in this you can ask it right now, otherwise I will move to the coding part. इसका कोड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है. Sir, I wrote a little differently. What are you saying? I wrote it a little differently. Okay, no issue, but still it has to be with ternary operator only. आपने हो सकता है that you made this in Sir, multiple, I used and at. you used and, okay, that also works. Then I think that would be more complex compared to this one. This is the simplified version and also works. That's logical and that you are talking about. That if both the conditions are true, then only it will be true, right? Yes, sir. Yeah. So is everyone clear about this? The logic? Let's move to the coding part of this question. Already done it for you. So let's say that we have A, B, and C as the three inputs. We will see that if my A is greater than equal to B and A is greater than equal to C, this is actually and only. अगर हम nested if लगा रहे हैं तो दोनों true होंगे. Then my A is the greatest. ठीक है, this will be printed. Else C is the greatest. इतना print हो जाएगा.
percent d will be replaced by value of c. ठीक है, and if this is not true, it means that b is greater than a. So we will check if my b is greater than c also. ठीक है जी, if my b is greater than c also, then just a second, then we will say that b is greatest else c is greatest. हाँ जी, everyone clear about this? जो पीछे बताया था वही चीज का कोडिंग है यहाँ पे. हाँ जी, क्लियर. Instead of just writing a, b or c, I have put this, that percent d is the greatest. So if I run this code now, I give the three values as, let's say 13 or maybe 12, 34 and 12 again. So it will take care of the equal values also, क्योंकि हमने वो equal to वाली चीज भी साथ में डाली हुई है यहाँ पे comparison में. So we have put this greater than equal to. So even if multiple numbers are of same stature, then still the greatest value will be printed. बाकी तो आप जैसे मर्जी नंबर डाल दो randomly, it will always print the greatest value. ठीक है, it works. So let's move to the next code now. The next code says that we have to find the min and max in an array by single traverse. एक ही बार for loop चलाना है, मल्टीपल टाइम for loop नहीं चलना चाहिए. एक ही बार for loop चला के min max print करवाओ. ठीक है, any idea on this quickly? हाँ जी, anyone? Any idea about min and max in an array using a single traverse? How will we do it? Any idea from your side? No idea, sir. So we all know that how do we do an input into the array, yes or no? Now the only thing that we have to take care is that we have to find the min max. Let's do it. So this is the code I have already made. Don't worry about these big numbers. I will tell you the logic behind it. So we have to find the min max in an array using single traverse. Let's say that my array is of size 10. तो मैंने एक array लिया, int array of size 10. Int I लिया because I want to run the for loop. मैंने यहाँ पे min max ऐसे करके लिए हैं. Min is kind of 1 million. Max is equal to minus of 1 million. Can anyone tell me the logic behind this? Why have I taken these numbers? Quickly. अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा दोनों को, min max equal to 0, what will be the issue? So we can put negative integers also. Negative integers as in you want to put int min equal to -1? No, like the element of the arrays can be Yeah, negative. yes. So just to cover our base, I'm just saying that अगर मैं min 1 million ले लूंगा, इतना तो जनरल है that whenever I give 10 values, it will not have all the values above 1 million, right? So कुछ ना कुछ तो कम होगा. तो even if it is -1 million, still it will be compared to min value. And then again for the max value, if my value is by default, let's say सारे नंबर नेगेटिव में है, ठीक है, तो अगर मैं max equal to 0 लेके चलूंगा, तो अगर मेरे सारे नंबर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 पांचों नेगेटिव हैं, then it will say that my max is 0. अगर मैं इसको int max equal to 0 इनिशियलाइज कर दूंगा. सो जस्ट टू कवर ऑल द बेसिस के भाई मैं नेगेटिव नंबर भी लेके चलूं, पॉजिटिव नंबर भी लेके चलूं, I have intentionally put these big numbers as my initial values. Now the rest of it is very easy. We are taking a for loop I equal to 0 to I less than size. We are taking the input from the user. We are comparing it with the min and max. तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा जो नंबर इनपुट आया, if it is lesser than my min value, then
please replace my minimum value, right? Similarly, if my input value is greater than max, then replace my max value, because we want to make sure that we are putting the maximum value into the max variable. Just after coming out of the for loop, we are printing the value of min and max. Just run it. So we have to input 10 values. Let it be 12, 3, minus 100, 34, 56, maybe 1000 और maybe 1 lakh. ठीक है, ऐसे कुछ कर लेते हैं. Minus of 23, minus of 200, 12 again, 56. So this is my range. Minimum value is minus 200 and maximum value is 1 lakh. Clear? Easy? If you have a doubt, you can ask. Anyone having any doubt in this code? No, sir. I want a response from others also. Every time only one person is speaking up. If you have a doubt, you can ask. So coming to the next question now. Our next question is that we have to reverse a string without changing the locations of special characters. This is also a e-box question. Has anyone attempted it yet? Reverse a string without changing the locations of special characters. Any idea what is the meaning of this question? This means that, for example, मैं एक ऐसा डाल रहा हूँ string input में, let's say SA space HIL hash 23 exclamation mark. अब मुझे इसको string को उल्टा करना है, ठीक है? Suppose I have to reverse this string, taking care of the special characters. Special character कौन कौन से इसमें? Can anyone tell me? इसमें से कौन कौन Hash special and character है? exclamation. Hash and exclamation mark. And also the space. ठीक है? This is also a special character because it is not sky, अपना alphabet नहीं है, number नहीं है, तो alphanumeric नहीं है, तो special character है. ठीक है? So these are the three places that are fixed for us. इनको हमने change नहीं करना. ठीक है? ये fixed रहेंगे, बाकी सबको उल्टा कर देंगे. We have to reverse and the final answer should be like this. तो space वहीं पे रहेगा, ये space को नहीं छेड़ना, यहाँ पे hash आएगा और यहाँ पे exclamation आएगा. Now we have to reverse it. तो ये वाला जो फर्स्ट वाला s था ये चलेगा एंड में, then A, then H I L 2 3. So if this is the input, this is the output. Clear about the question? Anyone having any doubt? No, sir. हाँ जी. Anyone else having any doubt? तो हम एक काम करते हैं. In fact, I will say that even 2 and 3 is special character. इसको special character माने या ना माने बताओ, उसके बेसिस पे हम कोडिंग करते हैं. If we consider that 0 to 9 is not a special character, तो आउटपुट ये आएगा. If we consider कि हमें सिर्फ अल्फाबेट्स को ही कंसिडर करना है कि उनको छोड़ के बाकी सब स्पेशल कैरेक्टर है, then my output should be, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, 3 and 2 भी कांस्टेंट रहेगा, हैश भी कांस्टेंट रहेगा एंड स्पेस भी कांस्टेंट रहेगा. then it gets more simple, so it will be उल्टा from this side. तो ये होगा SAHIL. So this is the output when we say that only alphabets have to be considered as a string. बाकी सब alphabets के अलावा हमारा special character है. और ये है कि अल्फा न्यूमेरिक को हम लेके चलेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि वो special नहीं है, वो normal है, तो ये output आएगा.
हाँ जी, विच अप्रोच डू यू वांट टू सी इन द सॉल्यूशन? मैं उसके हिसाब से कोडिंग दिखाता हूँ आपको, जल्दी बताओ। Sir, alphanumeric. अल्फा न्यूमेरिक, let's solve it for alphanumeric. Question number 31 for alphanumeric. Okay, everyone? Yes, sir. Okay. So, what is the logic behind it? कैसे solve करें? Can anyone tell me? कोई कुछ भी मन में आ रहा हो अभी बोल सकते हो। आपका फर्स्ट इंट्यूशन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। क्या लॉजिक होना चाहिए? कुछ भी आ रहा है मन में तो बोल सकते हो। So I can use a temporary variable and store values in that. So टेम्परेरी like we did वेरिएबल। for 3 numbers. हम्म, उसमें आपको लगता है हो जाएगा क्योंकि नाउ दिस इज एन एरे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, दिस इज नॉट जस्ट वन और टू नंबर्स, पूरा एरे है ये कैरेक्टर्स का, पूरा स्ट्रिंग हमारा। So can we make a different array with just the other like alphanumerics and then reverse it and then put it back? Rather than, what we can do is we can make sure that which locations have alphanumeric numbers, and then we will reverse only those things, only at those places the changes will take place, others will be ignored. You said nearly same thing, but I hope मैं क्या कह रहा हूँ मैं उसका थोड़ा सा एक यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरी अप्रोच क्या होने वाली है। मैं क्या करने वाला हूँ कि सपोज मेरा ये था, ठीक है, SAH12 हैश स्पेस IL एक्सक्लेमेशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका और इन दोनों का सिर्फ लोकेशन सेव कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज एट लोकेशन नंबर 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये 7 है और ये 8 है। तो आई वॉन्ट टू सेव इट इन ए एरे, तो मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ जिस एरे में ये सारे वैल्यूज सेव हो जाएंगे मेरे पास आके। दीज आर द एक्चुअल लोकेशंस ऑफ द अल्फान्यूमेरिक नंबर्स। तो जब मैं स्वैपिंग करूंगा आई विल पिक दीज नंबर्स, आई विल यूज देम एज द लोकेशंस, ठीक है। इसको मैं स्वैप करूंगा 8 के साथ क्योंकि रिवर्स करना है ना, तो दिस विल बी स्वैप्ड विद 8 वाला लोकेशन। ARR0 और ARR8 को मैं स्वैप करवा दूंगा। सिमिलरली 1 and 7 वाले को मैं स्वैप करवा दूंगा, 2 and 4 वाले को स्वैप करवा दूंगा, 3 वाला वहीं रह जाएगा। तो मेरा ओवरऑल ये चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? अगर मैं लोकेशन सेव करवा लूं देन कैन आई स्वैप द कैरेक्टर्स एट दोज लोकेशंस। तो अगर मैं ARR0 को स्वैप करूं ARR8 के साथ तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला स्वैप हो जाएगा। यस और नो? इग्नोरिंग अदर्स, जल्दी बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 और 8 को स्वैप करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ये वाला जो मेरा S है, S विल बी रिप्लेस बाय L, तो L वाला एंड में आ जाएगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ LS, एक्सक्लेमेशन को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 और 7 वाला स्वैप होगा A and I, तो ये हो गया I और ये हो गया A, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को नहीं छेड़ना, ये स्पेस ऐसी रहेगा, ये हैश ऐसी रहेगा। उसके बाद हम 2 और 4 को स्वैप करेंगे, सो दिस इज 2, दिस इज 4। तो ये वाले को 2 कर दो, यहाँ पे H कर दो, और 3 वाला वहीं पे रहेगा, उसको कहीं पे स्वैप नहीं करना था, तो इट इज 1 एज इट इज। क्लियर? ये लॉजिक था। सो अगर ये इनपुट है, ये वाला मेरा आउटपुट आएगा। एनी डाउट इन दिस विद द अप्रोच? हाँ जी, क्विकली। नो? No, sir. Okay, now I'm going to show the code. Let's see if it is okay or we need to change it. ठीक है, तो यहाँ डरना नहीं है, ये ऑलरेडी कोड हो रखा है यहाँ पे। कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन %s?
जल्दी बताओ। Sir, are you taking the input with like in a new line? I'm not taking the input in a new line, but I'm considering all the special characters in the input. क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ परसेंटेज के साथ करता, मैं एक आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड। लेट्स से if I do this code, scanf percentage char a10 maybe 20. So if I print this string now, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, तो ये सिर्फ फर्स्ट नेम उठा रहा है, स्पेस के बाद इग्नोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ साथ में ये वाली चीज, और अब मैं इसको रन करूंगा, सो इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द स्पेशल कैरेक्टर्स आल्सो। ठीक है, समझ में आ रहा है? Sir, तो वो print में नहीं चाहिए, only scanf में. हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हम सिर्फ इनपुट के टाइम पे कर रहे हैं। प्रिंटिंग के टाइम पे तो वो जितना उसने पिक करा होगा वो रख लेगा ना। वो स्कैनएफ में ही इशू आ रहा था, सिर्फ Okay, परसेंटेज sir. लिख के वो स्पेस भी कट कट मार देता है। ठीक है, सो आई हैव यूज्ड दिस टेक्निक टू पिक ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स irrespective ऑफ स्पेस और नॉट और मे बी हैश, जो भी है। ठीक है, तो जब भी स्पेस आता है वो तोड़ देता था, लेकिन अब तोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने ये वाला टेक्निक लगा लिया साथ में। सो इफ आई रन दिस नाउ, leave this, okay, so if I run this code now, लेकिन इसमें भी चेंज करना है मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मैंने सबसे पहले काउंट किया था कि भाई मेरे पास ऐसे कितने करेक्टर्स हैं, क्योंकि जो मैंने बोला था अप्रोच में कि हम एक एरे बनाएंगे जिसमें हम सेव करेंगे उनके इंडेक्स को, जहां जहां पे हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक होगा हम उसकी लोकेशन सेव कर लेंगे। बट वो कितने हैं ये भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, यस और नो? अल्फा न्यूमेरिक कितने हैं उसके हिसाब से एरे बनेगा। अगर मेरा अल्फा न्यूमेरिक है, लेट्स से टोटल 200 का मैंने स्ट्रिंग ली है, 200 में से हमने अल्फा न्यूमेरिक रखे हैं अपने सिर्फ 50, और मैंने जो एरे बनाया है वो 40 का बना लिया बाय हुक और क्रुक, तो वो बाकी 10 को तो मिस कर देगा। तो इसलिए वी हैव टू काउंट कि अल्फा न्यूमेरिक हैं कितने। तो अल्फा न्यूमेरिक के लिए आई हैव मेड दिस फॉर अल्फाबेट्स। ठीक है, कि भाई या तो उसका स्काई वैल्यू 65 से 90 में आ रहा है, इट विल टेक केयर ऑफ द कैपिटल कैरेक्टर्स ऑफ A to Z। 97 to 122 will be taken care of having all the small alphabets, ठीक है, लोअर केस वाले। नाउ आई ऑल्सो वांट टू टेक केयर ऑफ द नंबर्स। न्यूमेरिक का क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी दैट अगर मुझे 0 to 9 वाले भी कवर करने हैं, व्हाट शुड बी द रेंज, ये वाली रेंज क्या होगी, जल्दी बताओ। इट शुड बी 48 to 57। A sky value of 48 to 57 takes care of all the numbers of 0 to 9। अल्फा न्यूमेरिक वाला वो पिक कर लेगा। ठीक है जी। एंड सिमिलरली मुझे ये वाली चीज यहाँ पे भी नीचे डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो नाउ द कोड सेज दैट वी आर काउंटिंग ऑल द करेक्टर्स जो भी मेरे अल्फा न्यूमेरिक हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए या कोई भी नंबर, तो उनको हमने काउंट कर लिया। एक बार काउंट कर लिया तो फिर हम एक एरे बनाएंगे, स्ट्रिंग लोकेशन काउंट। तो सपोज मेरे पास 200 में से 50 आए जो अल्फा न्यूमेरिक थे। ठीक है, नाउ आई ऑल्सो वांट टू सेव देम, है ना, जो भी मेरा न्यू एरे होगा उसमें मुझे उनके लोकेशंस चाहिए। जैसे मैंने वो बोला था कि 1 2 5 6 8 ऐसे करके वो वाले नंबर आ जाए मेरे उस एरे में, तो वो ये वाले एरे में आएंगे। ठीक है, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इंट सी इक्वल टू 0, देखते हैं सी कहाँ पे काम आएगा। दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग अस इन मूविंग इनसाइड दिस एरे। तो हम क्या करेंगे, वी विल गो फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जितना भी मेरा स्ट्रिंग होगा
तो सपोज मैंने मैक्सिमम 200 लिया था, पर मैंने स्ट्रिंग इनपुट करवाया सिर्फ 20 करेक्टर का, तो वो 0 से लेके 20 तक लेके जाएगा हमें, और उसके अंदर वो देखेगा कि अगर मेरा यहाँ पे कोई भी ऐसा करेक्टर आ रहा है अल्फान्यूमेरिक वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका लोकेशन सेव कर रहा हूँ। आई एम सेविंग द आई इनसाइड दिस strloc। और C++ इसलिए क्योंकि एक बार अगर मैंने 0 वाला लोकेशन फिल कर दिया इस एरे में, तो मुझे अगली बार वहां पे 1 वाले को फिल करना है। तो इस बार मैंने हर बार यहाँ पे C++ कर दिया कि जब भी लेटेस्ट वैल्यू आएगी वहां पे फिल करने के बाद अगली बार के लिए वो अगली लोकेशन पे चला जाए विद इन द strloc वाला एरे। सो नाउ इट विल प्रिंट माई ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। वी विल डू दिस जस्ट टू टेक केयर के हाँ भाई मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग कैसा दिखता था। आफ्टर दैट वी आर डूइंग दिस थिंग, मैंने उसको स्वैप कर दिया यूजिंग दिस जो मेरा strloc में सारे लोकेशंस आए थे, उन लोकेशंस के बेसिस पे हमने उनको स्वैप करवा दिया सबको, मूविंग फ्रॉम 0 टू हाफ ऑफ दैट काउंट। ठीक है, क्योंकि काउंट में क्या था, काउंट में वी हैड दिस ऑल द करेक्टर्स, तो मुझे उसमें जाना था और 1 बाय 1 सबको चेंज करना था। So if anyone wants to leave, you can leave. If you have other class, I will continue. So we will print the final string also after doing all the changes on the backend. So let's run it. So let's do a complex string. For example, जो मैंने पीछे लिखा था वैसे कुछ लिख देते हैं, SA12 space dollar power ampersand space 3HIL exclamation. So let's check if my code works. ठीक है, so this was my original string and this is my final reverse string. ठीक है, any doubt in this? We are not changing the locations of the special characters, we are just reversing alphanumeric part. Clear? If you have a doubt in this code, you can specify the line number. I will explain that part again.